Hello everyone, I'm Justina Paris and I welcome you all to today's daily news analysis. आज है 3rd November 2025 and we are going to be seeing important articles from the Hindu and the Indian Express. So let's begin. But before we move on to the important articles of the day, we also see that कल बहुत ही interesting match था with regard to the World Cup, with regard to the ODI, right? So यहाँ पे हम देखते हैं, yes, India has won this particular World Cup. It talks a lot about it because हम देखते हैं कि this was the first time ever India, the women's team, has bagged this trophy. So it goes on to say कि आप जितना determination, perseverance, आपका जितना commitment है, it is going to show fruit. Maybe today, maybe tomorrow, but it will show. Okay, तो यहाँ पे आपके efforts कभी भी waste नहीं होंगे. You have to put in so much efforts. You need to be determined, dedicated to your goal, and I'm sure ये आपको एक एक पॉजिटिव रिजल्ट जरूर देगी. लेट्स नाउ अंडरस्टैंड सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जो हमको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है एंड जनरली टू अंडरस्टैंड ऑल्सो बिकॉज इंडिया हैज वन दिस. तो होस्ट कंट्री इंडिया ही थी विद रिगार्ड टू द आईसीसी वुमेन्स ओडीआई वर्ल्ड कप 2025. हमने देखा इंडिया ने कौन सी टीम को बीट किया. इट वाज साउथ अफ्रीका दैट वी बीट by 52 runs. Now यहाँ पे हम देखते हैं this is the first ever time that India has won, the women's team has won this, and that is why this is a significant event for us. We also see the player of the match was Shafali Verma. The player of the tournament is Deepti Sharma. Question to you, who is the captain of the women's team? The Indian women's team की जो captain है, ये आपको मुझे comment section में बताना है. Right? Now, if you see so far हम देखते हैं तो पहली बार जब हुआ था, it was in 1973. This was the first edition of the women's team. हम यहाँ देखते हैं कि अभी तक 7 times ऑस्ट्रेलिया ही जीती है. So if they ask you the most successful team with regard to the women's ODI World Cup, the answer is Australia, who has won this 7 times. And we see that India beat Australia with exceptional performance by Jemima Rodrigues. And हम देखते हैं कि we were able to qualify to the finals after beating Australia. हम ये भी देखते हैं कि this is India's this first you can say trophy, and this also was in the home soil यानी कि नवी मुंबई में मैच था. So this goes on to say this is a very significant event, and also कि हम देखते हैं कि the women's ODI World Cup जो है it's the oldest global event in women's cricket. Okay, और जो मेंस क्रिकेट है ये 1975 में स्टार्ट हुआ. सो इवन बिफोर द मेंस हम देखते हैं कि 1973 इज वेयर द वुमेन्स ओडीआई वर्ल्ड कप स्टार्टेड. Let us now proceed to the next article. The next article is with regard to science and technology. तो science and technology हम देखते हैं कि कल यानी संडे को we saw a new launch that happened which is called as the GSAT 7R या इसको CMS यानी कि communication satellite कहते हैं. Communication satellite 03 CMS 03. Let's understand some important facts regarding this. हम देखते हैं कि ये कौन सी सेक्टर यूज करेगी. This is going to be used by the Indian Navy, very very important, right? तो यहाँ पे हम देखते हैं कि एक एडवांस कम्युनिकेशन सैटेलाइट है ताकि इंडियन नेवी जो है ये कम्युनिकेट कर पाए इन अ वेरी एफिशिएंट मैनर. हम देखते हैं ये जो सैटेलाइट लॉन्च हुआ ये कहाँ से लॉन्च हुआ. दिस वाज लॉन्च्ड इन द लॉन्च साइट इसका है सतीश धवन स्पेस सेंटर which is in Sriharikota, Andhra Pradesh. We also see जो launch vehicle है यहाँ पे that took this GSAT satellite on top, उस launch vehicle का नाम है LVM-3 यानी launch vehicle Mark 3. ये आपको याद रखना है कि यही launch vehicle हम अपने human space flight mission के लिए भी इस्तेमाल करेंगे, which is the Gaganyaan mission, right? जो Gaganyaan mission होगा tentatively in 2027 we are going to see यही launch vehicle इस्तेमाल होगा because this is a heavyweight satellite launch vehicle. It can take about 4000 kgs up to in this particular लॉन्च व्हीकल लॉन्च कर सकती है सैटेलाइट्स को, हैवी वेट सैटेलाइट्स को. हम देखते हैं कि ये कहां पे उन्होंने इस सैटेलाइट को प्लेस किया. दिस वाज प्लेस्ड इन द जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट या जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट. हम देखते हैं देयर आर 3 टाइप्स मेनी कॉमनली यूज्ड. तो पहला है the sun synchronous orbit जो polar orbit भी कहते हैं because it rotates from pole to pole. Then we have the
स्टेशनरी ऑर्बिट जो मेनली बिल्कुल ऐसा होता है, दैट इज इक्वेटर के ऊपर होता है, एंड तीसरा वाला जो ऑर्बिट होता है इट कुड बी इन एन इंक्लाइंड मैनर कॉल्ड एज द जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट। सो यहाँ पे हम देखते हैं ये जो सैटेलाइट का वेट था that is GSAT-7R, it was approximately 4,400. Okay, so ये बहुत ही heavy weight satellite हम देखते हैं, heaviest communication satellite till date है ये, which is indigenously created by ISRO itself. तो यहाँ पे जल्दी से GSAT के बारे में कुछ और facts देखते हैं। Currently, as I said, the heaviest indigenous satellite built in India, इसका नाम क्या है? GSAT-7R CMS-03। हम देखते हैं कि बिकॉज ये इंडिजीनियस यानी इसरो ने खुद बनाया है विदाउट एनी फॉरेन प्लेयर्स, विदाउट एनी फॉरेन कंट्रीब्यूशन, हम देखते हैं कि दिस रिफ्लेक्ट्स हमारा जो आत्मनिर्भर भारत का जो गोल है, सेल्फ रिलायंस का जो गोल है, इट शोज, इट पोर्ट्रेज इन दिस केस स्पेशली विद रिगार्ड टू स्पेस टेक्नोलॉजी। हम देखते हैं ये कहाँ पे यूज होगा। एज आई सेड, इट इज गोइंग टू बी यूज्ड इन इंडियन नेवी स्पेस बेस्ड कम्युनिकेशंस एज वेल एज मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस के लिए ये इस्तेमाल होगा। सो दिस इज द पर्पस ऑफ इट एंड दिस विल हेल्प इन द टेलीकम्युनिकेशन coverage mainly in the Indian Ocean region. So to help us deal with challenges in the Indian Ocean region, ये satellite will be very useful. So यहाँ पे अलग अलग payloads इस्तेमाल किए गए हैं सैटेलाइट में, जैसे कि radars, transponders, है ना। So you require communication में जो भी voice, data, video links support करने के लिए जो भी यंत्र required है, ये सब इसमें यूज किया गया है ताकि कनेक्टिविटी जो है सीमलेस हो। अगर हम दो शिप्स के बीच में कनेक्टिविटी करना चाहते हैं एनक्रिप्टेड प्रॉपर एंड टू एंड एनक्रिप्शन के साथ, तो हम देखते हैं कि ये सैटेलाइट बिल्कुल मदद करेगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट द GSAT-7R, also known as CMS, India's heaviest indigenous built satellite. Let's now proceed to the next article. अगला आर्टिकल हमारा रामसार के बारे में है। जल्दी से देखते हैं कि क्या कोई नए साइट्स ऐड हुए हैं। The answer is no, because हम देखते हैं कि ये जो हम न्यूज देख रहे हैं यहाँ पे बहुत सारे एक्सपर्ट्स, कंजर्वेशनिस्ट, ओके, many such people have tried to introduce two more sites, or you can say one such site called as एक साइट है आसाम में जिसका नाम है रोमवारी धोंडुवा वेटलैंड। ये रोमारी धोंडुवा वेटलैंड आसाम में है एंड बहुत सारे ऐसे वाइल्ड लाइफ ऑफिशियल्स, एक्सपर्ट्स, एकेडमिक्स, स्टूडेंट्स, कंजर्वेशनिस्ट चाहते हैं कि ये वाला साइट भी रामसार के साइट में हो। ठीक है, सो प्रोबेबली अगर ये हो जाता है, दिस इज गोइंग टू बी द 94th साइट। सो फार हम देखते हैं इंडिया में कितने रामसार साइट्स हैं, 93rd, एंड विच आर द लेटेस्ट साइट्स दैट हैव बीन कम फ्रॉम बिहार, ये आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। ओके, सो फार वी हैव 93 एंड दिस इज प्रपोज्ड बाय इंडियंस कि ये साइट भी हो, कॉल्ड एज द रोमारी धोंडुवा वेटलैंड। Now where exactly, why is this needing to be in the Ramsar sites, ये भी हम देखते हैं। So we see that the location is in the wildlife sanctuary called as Lao Khowa। Okay, ये sanctuary में अंदर है, Lao Khowa that we see is in Assam. It is also part of the Kaziranga Tiger Reserve. Okay, and हम देखते हैं कि अभी तक नॉर्थ वेस्ट में केवल 2 साइट्स हैं। Which are these 2 sites? One is in Assam called as the Deepor Bill and जो दूसरा वाला है मणिपुर में called as the Loktak Lake। ठीक है, सो केवल ये 2 ही साइट्स हैं हम देखते हैं in the north east region। और why do we want this particular site रोमारी धोंडुवा वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, क्यों चाहते हैं हम ये रामसार में ऐड हो? बिकॉज इसमें बहुत सारे बर्ड स्पीशीज है, इवन मोर देन दीपोर बिल एंड लोकटक लेक। तो यहाँ पे बहुत सारे बर्ड्स अगर आप देख सकते हो। ओके, एंड वी ऑल्सो सी कि हमने कौन से threatened birds भी यहाँ पे दिखे जाते हैं। So I'm just going to give you the names of them, called as the knob-billed duck, black-necked stork, Ferguneus pochard. So these are the names of the birds, okay, that have been found here, which are threatened globally, worldwide. यहाँ पे हम देखते हैं कि इसका सिग्निफिकेंस यही है कि इट इज ऑल्सो अ
connectivity corridor for wild animals migrating between the Kaziranga Tiger Reserve as well as the Orang National Park. तो इन दो बीच के regions में हम देखते हैं कि एक corridor भी maintained है, connectivity corridor. So here we saw what is exactly this Romari Dondua जो Ramsar बनना चाहता है. But now let's quickly revise about Ramsar sites. So we have already done this before, but if there are new students watching this, this is for you. हम देखते हैं कि 1971 रामसार जो एक सिटी है ईरान में, यहाँ पे कंट्रीज शामिल हुए ताकि हम कंजर्व कर सके वेटलैंड्स को. Okay, this is mainly for the conservation of wetlands. What are wetlands? That are anything, any bodies or any region that is connected with water. ठीक है, so water bodies से कोई लगता है या कोई forest region में कोई wetland है, water bodies है, इसको हम बोलते हैं wetlands. So इनको कंजर्व करने के लिए ये रामसार कन्वेंशन आया. रिसेंटली हम देखते हैं कि इसका 15th मीटिंग हुआ in a place called as Zimbabwe. So the name of the place it happened was Victoria Falls. और विक्टोरिया फॉल्स में कहां पे? जिम्बाब्वे. ओके, ऑलराइट. नाउ हम देखते हैं कि रामसार में इंडिया में कितने ऐसे साइट्स हैं. एज आई ऑलरेडी एक्सप्लेन 93 साइट्स हैं. सबसे ज्यादा, लेकिन अगर हम कंट्री वाइज कहें, कंट्री वाइज यूके हैज द मोस्ट नंबर ऑफ साइट्स. उसके बाद आता है मेक्सिको एंड उसके बाद आता है इंडिया विद 93. बट अगर हम रीजन वाइज की बात करें, सबसे ज्यादा एरिया किस कंट्री में है विद रिगार्ड टू रामसार, देन द आंसर इज बोलिविया. ओके, जो रामसार का हेडक्वार्टर्स है, इट इज नॉट इन ईरान बट इट इज इन ग्लैंड्स जो है स्विट्जरलैंड में. ओके, और जो अगला मीटिंग होगा COP16, दिस इज गोइंग टू बी इन पनामा. So these are some important facts. Now one question for you. इंडिया में सबसे ज्यादा रामसार के साइट्स किस स्टेट में पाए जाते हैं? इंडिया में जो रामसार साइट्स हैं सबसे ज्यादा किस स्टेट में पाए जाते हैं, ये आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है. Let's now proceed to the next article. अगला आर्टिकल हम देखते हैं. इट इज विद रिगार्ड टू द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने एक इंटेंट इनवाइट किया है, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट. ओके, मेनली फ्रॉम वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस, कंपनीज एंड मैन्युफैक्चरर्स. मतलब ये क्या है? ये एक अग्रीमेंट दिखा रहा है, बोल रहा है कि आई वांट यू टू मेनली रिसर्च, डेवलप सम thing. Okay, now what is it that ICMR wants to produce? ये देखते हैं. They want to produce monoclonal antibodies. ये डेवलप या प्रोड्यूस करना चाहते हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज. किस वायरस के अगेंस्ट? नीपा वायरस के अगेंस्ट. तो पहले हम देखते हैं कि नीपा वायरस क्या है और उसके बाद हम देखते हैं इसका क्योर क्या है और ये ICMR क्या चाहता है. सो फर्स्टली एज आई सेड, लेट्स डू नीपा वायरस. ओके, नीपा वायरस की बात करें तो ये हम देखते हैं पहली बार 1998 में आउटब्रेक हुआ था इन मलेशिया. मलेशिया के बाद सिंगापुर में भी हम देखते हैं कि नीपा वायरस का फर्स्ट जो है इट वाज फाउंड देयर. ओके, द आउटब्रेक स्टार्टेड. हम देखते हैं रिसेंट टाइम्स मेनली इन 2000s और 2021 में भी हम देखते हैं ये आउटब्रेक काफी फैल गया था इंडिया में. एंड कौन से स्टेट में सबसे ज्यादा केसेस थे? इन केरला. ओके, ये जो नीपा वायरस है ये कैसे फैलता है? व्हाट आर द होस्ट ऑफ दिस वायरस? सो द आंसर इज फ्रूट बैट्स. ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो फ्रूट बैट्स आर द मेजर नेचुरल होस्ट ऑफ दिस. और ये जो फ्रूट बैट्स हैं, बिकॉज ये बहुत सारे फ्रूट्स के पास रहते हैं या ये वायरस को ट्रांसमिट करते हैं इन दिस, और जब ये इंसान इसको कंजेस्ट करता है वही फ्रूट्स को, तो इसमें ये फैल जाता है टू ह्यूमंस एज वेल. तो इसको हम जूनोटिक डिजीज कहते हैं. व्हाट डू यू मीन बाय जूनोटिक डिजीज? जूनोटिक डिजीजेस आर दोज डिजीजेस दैट आर स्प्रेड फ्रॉम एनिमल्स टू ह्यूमंस. ओके, सो ये कैसे फैलता है? It is mainly when you consume same thing or you are in contact with the same virus that are spread by these animals. So यहाँ पे हम देखते हैं transmission of NIV can occur either
बैट से भी या पिग्स से भी, ओके, बट मेजर होस्ट जो नेचुरल होस्ट होता है वो फ्रूट बैट्स ही होता है। सो कांटेक्ट विद अदर निपा वायरस पेशेंट्स के वजह से ये इंसानों से भी फैलता है। सो इट कैन बी इन्फेक्टेड, वंस इट इज इन्फेक्टेड बाय ए पर्सन इट कैन ट्रांसफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एज वेल। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कैसे सिम्टम्स होते हैं, हाउ डू यू फील आफ्टर यू आर एक्सपोज टू द निपा वायरस। हम देखते हैं कि देयर इज फीवर, हेडेक, ड्राउजीनेस, डिसोरिएंटेशन होता है, कंफ्यूजन होता है, एंड इन सम केसेस वी आल्सो सी कोमा और इवन पोटेंशियल डेथ। ठीक है, तो ये एक बहुत सीरियस कंडीशन है एंड हम देखते हैं कि अभी तक कोई ट्रीटमेंट नहीं है निपा वायरस के लिए। सो देयर इज नो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट, और तो क्या करना पड़ता है, यू जस्ट नीड टू हैव इंटेंसिव सपोर्टिव केयर। उसको इम्यूनिटी बिल्ड करने के लिए दे शुड बी वेल फेड, ताकि बॉडी का जो इम्यूनिटी है इस वायरस को फाइट कर सके। ठीक है, सो दिस इज आफ्टर इंक्यूबेशन हम देखते हैं 5 to 14 डेज में एक्सपोजर होने के बाद 5 से 14 दिन हम देखते हैं कि इलनेस होता है, एंड द इलनेस प्रेजेंट्स विद अबाउट 3 to 14 डेज ऑफ फीवर, हेडेक फॉलोड बाय अदर सिम्टम्स। तो ये है निपा वायरस। हम देखते हैं इन्फेक्टेड मेनली इन आरएनए वायरस बोलते हैं हम इसको, एंड दिस इज मेनली स्प्रेड इन एनिमल्स, फ्रॉम एनिमल्स टू ह्यूमंस। अभी हम देखते हैं ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज क्या है जो आईसीएमआर कहता है कि प्लीज ये डेवलप करो। For that you need to know what are antibodies, okay? तो antibodies हमारी बॉडी में ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जो हमारी इम्यून सिस्टम प्रोड्यूस करती है। तो हमारे बॉडी में हमारा इम्यून सिस्टम होता है जो ये प्रोटीन्स कॉल्ड एज एंटीबॉडीज बनाती है। तो ये एंटीबॉडीज का काम क्या है? एंटीबॉडीज का काम है जो जर्म्स होते हैं, बैक्टीरिया होता है, वायरस होता है, इसको फाइट करने में ये एंटीबॉडीज मदद करते हैं। ओके, सो एंटीबॉडीज आर लाइक द protectors in our body then by the naturally formed human immune system. Now if our body is not able to produce a lot of antibodies, मान लो कि तुम्हारा immune system ही weak है, so इसीलिए we have lab made proteins. तो lab made proteins are called as monoclonal antibodies. ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एंटीबॉडीज लेते हैं बॉडी से और इसको क्लोन करते हैं, टाइप ऑफ एंटीबॉडी लेते हैं, इसलिए मोनोक्लोन मतलब इसका कॉपीज बनाते हैं लैब में और इसको पेशेंट को दिया जाता है ताकि वो उस वायरस, उस बैक्टीरिया को टारगेट करे। सो इस केस में हम देखते हैं कि निपा वायरस का जो वायरस है हम इसको टारगेट कर रहे हैं। So this is the only feasible now biomedical countermeasure जो हमारे पास है against Nipah virus because we don't have any medicines to fight Nipah virus. Okay, so यहाँ पे it is also can serve as post-exposure prophylaxis. Now what do you mean by post-exposure prophylaxis? मान लो कोई पेशेंट है, ठीक है, उसके साथ मेरा एक्सपोजर होता है। ओके, नाउ उसका एक्सपोजर जो है before I get myself infected even further, ये मैं यूज कर सकती हूँ, ये प्रोटेक्शन के तौर पे यूज कर सकती हूँ ताकि मुझे ये इन्फेक्शन ना हो, मेरे में ये इन्फेक्शन ना फैले। सो दिस इज कॉल्ड पोस्ट एक्सपोजर। एक्सपोजर के होने के बाद जो आप मेडिकेशन करते हो, कोई मेडिसिन लेते हो, उसको बोलते हैं पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस। जैसे कि डॉक्टर्स विल रिक्वायर दिस मोर बिकॉज दे आर मोर इन कॉन्टैक्ट विद दीज पेशेंट्स, राइट। तो हेल्थ केयर वर्कर्स एक्सपोज होते हैं विदाउट एडिक्वेट प्रोटेक्शन। फैमिली मेंबर्स की बात करें या लेबोरेटरी स्टाफ जो डील करते हैं इन सैंपल्स के साथ, तो उनको भी इन्फेक्शन हो सकता है। सो दिस विल हेल्प इवन दीज स्टाफ। फिर एडमिनिस्टर्ड, अगर जल्दी से अगर ये एंटीबॉडीज मिल जाते हैं, ये डिजीज ऑनसेट को बंद, मतलब हो सकता है कि जो डिजीज प्रिवेल होता है या बढ़ जाता है उसको वो टारगेट कर सकते हैं। सो पेशेंट्स इन्फेक्टेड अर्ली, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक सोल्यूशन होगा ताकि ये डिजीज आगे जाके बदतर ना हो, उसका डिजीज का जो प्रोग्रेशन है इसको लिमिट कर पाए। सो दिस इज कॉल्ड एज मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, लैब मेड एंटीबॉडीज, राइट। सो नाउ आईसीएमआर ने कहा है कि बहुत सारी कंपनीज को प्लीज तुम ऐसे स्टार्ट करो बनाना बिकॉज वी नीड टू फाइंड अ क्योर फॉर द निपा वायरस।
सो आईसीएमआर का एक प्लान है कि हम इंडिजीनियस कैपेसिटी, तो यहाँ पे भी हम आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं, सेल्फ रिलायंट बनना चाहते हैं इवन इन द हेल्थ केयर सेक्टर। सो यहाँ पे कोलैबोरेशन करना चाहते हैं अलग अलग इंडस्ट्री से, इसीलिए उन्होंने वेरियस इंडस्ट्रीज से यहाँ पे इंटेंट शो करना दिखा है। सो दिस शोज दैट वी आर क्रिएटिंग इंडिजीनियस मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, और इसका अगर टाइमली एक्सेस मिले, प्रिपेयर्डनेस हो, देन वी कैन बी एबल टू फाइट एनी सच डिसऑर्डर और डिजीज। तो यहाँ पे वी सी दैट अभी तक जो आईसीएमआर NIV, दैट इज द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, जो पुणे में है, इन्होंने ऑलरेडी R&D स्टार्ट किया है और अभी एडवांस स्टेज में है, और दूसरे इंस्टीट्यूशंस के साथ भी इट इज हैविंग कनेक्शंस, ताकि हम एक्सपर्ट गाइडेंस, टेक्निकल सपोर्ट करके वी आर एबल टू फाइट एनी सच डिजीज। Let's now proceed to the next article. अगला आर्टिकल है क्लाउड सीडिंग के बारे में. Now I've already explained cloud seeding probably in my previous week, but I'll just give you a revision as to what exactly is cloud seeding. तो हम देखते हैं कि दिवाली के बाद पोल्यूशन ज्यादा बढ़ गई थी, स्पेशली इफ यू टॉक अबाउट इन दिल्ली. एंड दिल्ली का हर साल का ऐसा सीन होता है कि बिकॉज ऑफ द स्टबल बर्निंग, बिकॉज ऑफ द व्हीक्यूलर एमिशंस, बिकॉज ऑफ द इंडस्ट्रियल एमिशंस, वहां पे पोल्यूशन काफी हद तक बढ़ जाता है. तो दिल्ली के गवर्नमेंट ने अलोंग विथ कौन से अदर इंस्टीट्यूट, IIT कानपुर, ठीक है, तो इनके साथ गवर्नमेंट ने एसोसिएट किया और उन्होंने स्टार्ट किया समथिंग कॉल्ड एज द क्लाउड सीडिंग. क्लाउड सीडिंग का मकसद यही था कि बारिश जनरेट करने के लिए, प्रेसिपिटेशन लेके आने के लिए, ताकि हम ये जो पोल्यूटेंट्स जो डिस्पर्स्ड हुए हैं इन द एटमॉस्फेयर, इसको हम सेटल डाउन करें, राइट. सो दैट वाज द मेन एम ऑफ क्लाउड सीडिंग. तो जल्दी से अभी हम देखते हैं कि आर्टिकल में क्या बताया है. आर्टिकल में यही बताया है कि ये जो है, जो क्लाउड सीडिंग का एक्सपेरिमेंट किया गया था दिल्ली गवर्नमेंट ने, इट वाज नॉट अ सक्सेस. क्यों सक्सेस नहीं था? बिकॉज वहां पे कंडीशंस वैसे नहीं थे ताकि क्लाउड सीडिंग हो. Okay, so that is what it's saying. This of course led to financial losses for us, right? Because obviously हम देखते हैं कि क्लाउड सीडिंग में हम एक हेलीकॉप्टर का यूज करते हैं या प्लेन का इस्तेमाल करते हैं ताकि ये जो केमिकल्स हम डिस्पर्स करें इन द एटमॉस्फेयर, एंड वो फिर crystallize होके they come down, they condense and they crystallize and they come down as rainfall. But because ये clouds ही नहीं थे आसमान में, जिसके कारण ये जो formation होना चाहिए था वो नहीं हुआ. So that was the case that we see. So cloud seeding technique क्या है? It involves chemicals. कौन से chemicals हम use करते हैं? We use chemicals like silver iodide, सोडियम क्लोराइड, ड्राई आइस, इसका हम इस्तेमाल करते हैं क्लाउड्स में उसको डिस्पर्स करने के लिए, ताकि हम रेन पैदा कर सके आर्टिफिशियली. सो वी आर क्रिएटिंग द रेन्स आर्टिफिशियली. और ये यूज होता है मेनली जब हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग क्लाउड्स हो. इसको क्लाउड्स नहीं बना सकते हम, इसमें हम क्लाउड्स नहीं बना सकते, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग क्लाउड्स होने चाहिए, उसको हम ये केमिकल्स देते हैं. बट ये जो क्लाउड्स थे वो मिसिंग थे या कम थे ड्यूरिंग दिस कंडीशन, ड्यूरिंग दिस पीरियड व्हेन दिल्ली हैड डन दिस एक्सपेरिमेंट. दैट इज व्हाई इट वाज नॉट अ सक्सेस. एंड वी आल्सो सी कि ये जो क्लाउड फॉर्मेशन होता है, इट इज मेनली प्री मानसून या मानसून सीजन में ये होता है, नॉट इन विंटर्स. और ये जो एक्सपेरिमेंट किया गया है, अभी विंटर्स का ऑनसेट हुआ है, सो वी सी दैट इट वाज नॉट सक्सेसफुल. सो लिमिटेशंस वही थे कि अनसूटेबल क्लाउड कंडीशंस थे. ओके, ड्रिजल हुआ था अंडर कूल कंडीशंस, और ये ड्रिजल के कारण जो PM 2.5 जो है ये इंक्रीज हुआ, इसकी मात्रा इंक्रीज हुई, जिसके कारण पोल्यूशन जो थोड़ा था वो और भी ज्यादा बढ़ गया बिकॉज ऑफ द ड्रिजलिंग इफेक्ट ओनली. तो इवन सक्सेसफुल रेनफॉल गिव्स ओनली अ शॉर्ट टर्म रिलीफ. ये जो हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, राइटर यही कहता है कि दिस इज ओनली शॉर्ट टर्म रिलीफ. ठीक है, यहाँ पे आप देखते हो कि ये एक बार तुमने कर लिया, वापस से करना पड़ेगा, बिकॉज वापस से पोल्यूटेंट अराइज हो सकते हैं. सो दिस क्लाउड सीडिंग इज लाइक वी सी इज एन आर्टिफिशियल मेथड. ये अभी के लिए कर सकते हो, लेकिन बार बार करने के लिए दिस इज नॉट वेरी कन्वीनियंट. तो यहाँ पे आपको क्या करना चाहिए? सोल्यूशंस वही है कि गवर्नमेंट शुड टेक इन नेसेसरी पॉलिसीज. जो स्टबल बर्निंग पंजाब एंड हरियाणा रीजन में होता है, वहां पे आप हैप्पी सीडर मेथड यूज करो, ताकि ये जो बर्निंग ना हो, उसके कारण पोल्यूशन ना हो. व्हीकल पोल्यूशन को कम करो, कार पूलिंग को प्रमोट करो, जो कंस्ट्रक्शन जो इलीगल हो रहा है
उसको आप बंद करो. So all of these are the other methods you can do to control the pollution. And this is every year there's always been this article about Delhi pollution जो हम discuss करते हैं. Now when you talk about Delhi pollution or pollution in general, how do we measure the pollution? तो यहाँ पे हमको याद रखना है कि there's something called as the air quality index, right? So let's understand about the air quality index. ये जो air quality index है ये central government ने launch किया था 2014 में as part of the स्वच्छ भारत campaign. ठीक है? So now this was so that we ensure a clean environment, and 2014 में launch किया था to again control the pollution as well as to create awareness among the masses. तो ये कुछ pollutants को measure करता है जो atmosphere में है, जैसे कि you need to know this by heart, okay? PM10, PM2.5, nitrogen oxide, sulfur dioxide, ozone, carbon monoxide, ammonia and lead. You need to know these 8 pollutants by heart. Okay, and depending on कितना ये pollutants हैं, इसको ranking या score दिया जाता है. So good score is अगर तुम्हारा pollutant AQI अगर 0 से 50 के अंदर है, it's good. 50 to 100 है, it is satisfactory. 100 से लेके 200 है, it is moderately polluted. Poor मतलब 200 to 300, very poor 300 to 400. और अगर 400 to 500 है, इससे ज्यादा है, we call it severe. ठीक है? So that is where the categories are. You need to know the categories as well as the pollutants. Let's now proceed to the next article. अगला आर्टिकल है कि हम देख रहे हैं कि हमारे जो विंटर सेशन ऑफ द पार्लियामेंट जो अभी स्टार्ट होने वाला है, इसमें हम 2 लॉज को अमेंड करने वाले हैं, ऐसा गवर्नमेंट कह रहा है. So let's understand which 2 laws हम अमेंड करने वाले हैं. First is the Civil Liability for Nuclear Damage Act 2010 का है, और दूसरा वाला है is the Atomic Energy Act, that is the 1962 का act. Okay, now what is the objective of it? हम इंडिया का जो न्यूक्लियर लॉज हैं इसको अमेंड करना चाहते हैं, as well as हम उसको अलाइन करना चाहते हैं with world, with global norms, right? ताकि फॉरेन जो इन्वेस्टमेंट है ये आए, प्राइवेट पार्टिसिपेशन यहाँ पे आए, एंड ताकि हम न्यूक्लियर सेक्टर में ज्यादा से ज्यादा आत्मनिर्भर होके वी नीड टू बी लाइक फ्रंट रनर्स इन दिस केस. हमारा एक यहाँ पे टारगेट भी है न्यूक्लियर एनर्जी का, 100 गीगावाट हम बनाना चाहते हैं रिन्यूएबल एनर्जी. नाउ यहाँ पे आपको बताना है मुझे कौन से ईयर का टारगेट है, ये कब तक ये अचीव करना है, ये आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है. जो 100 गीगावाट we are creating renewable energy, the nuclear energy, by which year shall we make it, that you have to write in the comment section. Let's now proceed to understand what are these 2 laws जो government amend करना चाहती है. So here we have the Civil Liability for Nuclear Damage Act. This is the first act that came in 2010. Now ये जो हम देखते हैं करंटली, ये जो लाइबिलिटी होती है, ओके, लाइबिलिटी अगर मान लो कोई एक्सीडेंट होता है, ये कौन कॉम्पेंसेट करेगा? अगर मान लो इंडिया में कोई न्यूक्लियर एक्सीडेंट होता है, तो न्यूक्लियर एक्सीडेंट के टाइम पे किसको भरपाई करनी पड़ेगी? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ये क्या कहता है, सप्लायर जो ये न्यूक्लियर मटेरियल सप्लाई करता है ना, उसको ही पैसे देने पड़ेंगे. ठीक है, उसको पैसे देने पड़ेंगे विद रिगार्ड टू द वाया द ऑपरेटर्स राइट ऑफ रिकोर्स. Now this, because of this particular clause, बाहर की कोई कंपनी यहाँ पे इन्वेस्ट ही नहीं करना चाहती है, बिकॉज वो कहते हैं कि अगर मान लो तुमने ऑपरेट करना, तुमने कुछ मिस्टेक किया, तुमने एक्सीडेंट किया, तो हमने यहाँ पे बस तुमको मटेरियल दिया है, हम क्यों यहाँ पे आपको पैसे दे? सो बहुत सारे जो फॉरेन वेंडर्स हैं जैसे कि वेस्टिंग हाउस, EDF, ठीक है, ये यूएस और फ्रांस की कंपनी है, यहाँ पे इन्वेस्ट करना नहीं चाहती. सो फार हम देखते हैं सिर्फ एक ही कंट्री यहाँ पे इन्वेस्ट करती है. विच कंट्री invest in our nuclear program or operates in our nuclear power plant? You have to write that, which is that country. You need to tell me in the comment section. ओके, सो द गवर्नमेंट अभी कुछ कैप लगा सकती है कि सप्लायर लाइबिलिटी इतना ही देना पड़ेगा, या कोई स्टेट बैक्ड फंड बनाएगी, तो ये देखेंगे कि क्या अमेंड करती है. सो दिस इज मेनली टू एड्रेस जो फॉरेन इन्वेस्टर्स के कंसर्न है टू पार्टिसिपेट इन द न्यूक्लियर मार्केट. ओके, ये उनको अट्रैक्टिव बनाएगा बाय हैविंग सच कैप और सच प्रोविजंस दैट लीड टू US and France also coming in the sector.
द सेकेंड लॉ जो ये अमेंड करने वाला है दैट इज कॉल्ड एज द एटॉमिक एनर्जी एक्ट ऑफ 1962. नाउ अकॉर्डिंग टू दिस हम देखते हैं कि सिर्फ पहले हम देखते थे प्राइवेट कंपनीज जो है दे वर नॉट अलाउड टू इन्वेस्ट इन द न्यूक्लियर एनर्जी. ओके, सो यहाँ पे प्रपोजल हो सकता है कि अभी 49% इक्विटी न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स में अलाउ कर पाएगी अगर ये एक्ट अमेंड हुआ तो. बट बिफोर दिस 1962 में फॉरेन प्लेयर्स वर नॉट अलाउड टू पार्टिसिपेट इन दिस पर्टिकुलर सेक्टर. तो ये एक चेंज हम देख सकते हैं अगर ये एक्ट अमेंड हो गया तो. So this will permit foreign equity participation, project execution, पैसे भी आएंगे execute करने के लिए. We'll see that state सिर्फ government यहाँ पे hold करती थी, government की monopoly होती थी, but now we will probably see a public-private partnership in this regard. Okay, ये हम revive भी कर पाएंगे the Indo-US Civil Nuclear Deal 2008 का, और trade negotiations भी support कर पाएंगे with regard to US in this regard. Let us also say कि इस पर्टिकुलर सेक्टर में न्यूक्लियर एनर्जी में हमने और क्या चेंजेस किए हैं. सो हमने रिसेंटली भी किया है स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स. जल्दी से देखते हैं व्हाट आर स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स. इट इज मेनली एडवांस न्यूक्लियर रिएक्टर्स जो ट्रेडिशनल न्यूक्लियर रिएक्टर्स के हिसाब से हम देखते हैं सिर्फ 1/3 कैपेसिटी में ऑपरेट करते हैं. सो 1/3 मतलब इट इज मेनली लेस देन 300 मेगावाट इलेक्ट्रिक. ठीक है, 1/3 ऑफ द एक्चुअल ट्रेडिशनल जो न्यूक्लियर प्लांट्स हैं उससे 1/3 में ऑपरेट करते हैं. एंड दे आर स्मॉल, दे आर कंसाइज, ओके, एंड दे आर इजी टू ऑपरेट एंड सो. तो यहाँ पे इट इज लो कार्बन बेस्ड, ओके, ग्रिड स्टेबिलिटी है, मेनली प्रॉपर एनर्जी दे पाएगी. कीपिंग इन माइंड कि रिन्यूएबल जो है, रिन्यूएबल एनर्जी में एक फ्लॉ क्या है कि वो बहुत इरेटिक है, कंटिन्यूस फ्लो नहीं हो सकता, राइट. सोलर एनर्जी का कुछ दिन क्लाउडी हो, वेदर कंडीशंस हो सकते हैं, या विंड इतना जोर नहीं है. तो यहाँ पे बिकॉज ऑफ द वेरिएबिलिटी दैट वी सी, ये जो small modular reactors हैं, they are more promising as compared to renewable in this case. तो इंडिया यहाँ पे लीड करना चाहता है ग्लोबली इन रिगार्ड टू SMR टेक्नोलॉजी, और हमने यहाँ पे पुश दिया है समथिंग कॉल्ड एज द भारत स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर प्रोग्राम. ये कौन बना रहा है, लीड कर रहा है NPCIL एंड ऑल्सो विद द हेल्प ऑफ BARC. ठीक है, अलॉन्ग विद द हेल्प ऑफ BARC. तो यहाँ पे इन्होंने दूसरे फर्म्स को भी यहाँ पे इन्विटेशन दिया है, लाइक रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाटा पावर, अडानी पावर, हिंदल्को, JSW, जिंदल स्टील एंड पावर. बहुत सारे फर्म्स यहाँ पे इंटरेस्ट शो कर रहे हैं ताकि वो भी डेवलप करें ऐसे सच स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स. तो 16 ऐसे साइट्स आइडेंटिफाई किए गए हैं. यू कैन सी इन विच स्टेट्स, गुजरात, मध्य प्रदेश, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़. तो NPCIL यहाँ पे ऑपरेशनल कंट्रोल लेगा, बट ये जो प्राइवेट कंपनीज हैं ये कैप्टिव पावर सप्लाई, मतलब कितना पावर सप्लाई को ये करना है, रखना है, देना है, ये सब कौन डिसाइड करेगा? ये प्राइवेट, मतलब जो पावर सप्लाई का कंट्रोल है ये प्राइवेट कंपनी के हाथ में होगी. सो दिस इज ऑल विद रिगार्ड टू द भारत स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर प्रोग्राम. नाउ लेट अस सी कि इंडिया में कौन सा और डेवलप हो रहा है डोमेस्टिकली. हम देखते हैं कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, आई टोल्ड यू BARC अलॉन्ग विद NPCIL, इन्होंने 3 ऐसे प्रोटोटाइप्स किए हैं. द फर्स्ट वन इज द भारत स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर जो 200 मेगावाट का है एंड इट ऑपरेट्स ऑन द लाइट वाटर रिएक्टर बेस. दूसरा वाला है भारत स्मॉल रिएक्टर जो 220 का है. ओके, सो द डिफरेंसेस, एक है भारत स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर और दूसरा है भारत स्मॉल रिएक्टर. तो क्वेश्चन क्या है ये पढ़ना है. BSMR आएगा तो 200 लिखना, BSR केबल आएगा तो 220 लिखना. एंड दिस इज व्हाट प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर, whereas BSMR क्या है? लाइट वाटर रिएक्टर. फर्दर SMR जो है वो है जस्ट SMR, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर, मतलब यहाँ पे एक्चुअल में स्मॉल क्या है? 55. ओके, सो दैट दिस इज लाइट वाटर रिएक्टर. नाउ दिस इज समथिंग जो आपको याद रखना है.
ओके सो यहाँ पे कोई फॉरेन कोलैबोरेशन नहीं, यानी कि ये हम इंडिजीनियस बनाना चाहते हैं. ओके एंड यहाँ पे ये एक्सपेक्टेड होगा कि 60 to 72 मंथ्स में दिस शुड बी अप एंड रनिंग. ओके सो वी हैव आल्सो सीन कौन से साइट्स में बिल्ड करेंगे, डीई साइट्स, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी साइट्स. तो ये सब अलाइन करता है इंडिया के गोल में टू प्रोड्यूस, वन इज एनर्जी, दिस क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन गोल्स एज वेल एज विद रिगार्ड टू हमारा आत्मनिर्भर गोल. सो दिस इज विद रिगार्ड टू द डोमेस्टिक स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स. लेट्स नाउ प्रोसीड टू द नेक्स्ट आर्टिकल, और ये एक एक्सरसाइज के बारे में है जिसका नाम है एक्सरसाइज त्रिशूल 2025. ये जो त्रिशूल है इट इज मेनली अ ट्राई सर्विस एक्सरसाइज, यानी कि इंडियन नेवी, आर्मी, एयरफोर्स सब यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे. ये आज के दिन स्टार्ट होगा, 12 दिन के लिए होगा ये. एंड इसको लीड कौन कर रहा है? इट्स लेड बाय द इंडियन नेवी. तो इंडियन नेवी का हमने बहुत सारे न्यूज देखे. एक तो एक सैटेलाइट जो लॉन्च किया है फॉर एडवांस नेवी कम्युनिकेशंस, और अब ये त्रिशूल भी जो इंडियन नेवी ही लीड कर रहा है and coordinated by the Western Naval Command. कहाँ पे ये होगा ये exercise? This is going to happen in Rajasthan, Gujarat, as well as extending to the northern Arabian Sea. This exercise is going to take place. तो participating formations होंगे Army के Southern Command, Navy के Western Naval Command, and Air Force के South Western Air Command. ठीक है? It is going to be supported by the Indian Coast Guards and the Border Security Forces as well as other central such agencies. And proceeding to the last article of the day, this is more of a one-liner जो आपको याद रखना है, बिकॉज ये इंडिया में पहली बार ऐसे हो रहा है, विच इज केरला ने, ओके, इट्स द फर्स्ट एवर कंट्री to start something called as the multimodal transport app. ओके तो केरला गवर्नमेंट ने क्या लॉन्च किया है? एक गवर्नमेंट कंट्रोल्ड एक ऐप होगा जहां पे जो भी आपको ट्रांसपोर्ट करना, मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट, मतलब अगर मान लो आपको वाटर मेट्रो से पास करना है, मेट्रो, बस, ऑटो, टैक्सीज, स्टेट के अंदर आपको कम्यूट करना है, तो ये ऐप जो है दिस विल बी वेरी हेल्पफुल, बिकॉज आप आपके टिकट्स, आपके जो भी ड्यूरेशन, रूट, ये सब आप इसमें देख पाओगे. सो इट्स लाइक अ वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर योर ट्रांसपोर्ट विद इन द country, within the state. So this is the first state to do so. तो ये आपको एक वन लाइनर आपको याद रखना है. So this is all with regard to today's daily news analysis. बहुत सारे interesting articles हमने देखे हैं, and I will see you in the next video where I'll be discussing about the 20 GK questions from CLAT perspective. Thank you so much for watching.